Let me start the recording then. And maybe just to start the discussion. Yeah, so I hope that today just like I asked you at some point to thank the insects for the ecological services or some of the biodiversity and keystone species in the way we maintain our life and the way our life is made easy because of their presence in the ecosystem. I think similarly, we kind of need to thank our farmers as well, because without them, we would probably be hungry, we would probably not have clothes and all the other things that we have today otherwise. And because life is changing, the climate is changing, situations are changing on a day-to-day basis, we can see the smaller changes in the weather patterns around us. And that impacts the decisions of farmers on ground. And of course, I grew up in a culture where I knew a lot of farmers, I was related to a lot of farmers. For me, the discussion on zero profit, loss, low yield, changing weather patterns, etc., were not new. I always knew that. But I think what startled me the most was when during my undergrad I had learned about the suicides in India. And I'm sure this happens everywhere as well, but because it was massively researched and reported, it was found out that roughly 16,000 people from the farming sector suicide every year, which is a huge number. And that is sometimes related to climate change, because of course they plan their year according to something, and then suddenly the situation changes. Suddenly it's too rainy, their harvest doesn't ripe. Sometimes when in the process there's a lot of loss, because as you would have seen in some of the reports, how even if the yield is increased, the pre-harvest loss is so much. And a lot of scientists argue on the fact that it's not about creating 70% or growing 70% more crops or food by 2050 for the 9 billion people, but about bringing 70% food on the plate of people. Because despite as everything, as Daniel said, it still remains true that some people are wasteful, and others don't have the basic food that they would need for sustenance. So when I'd seen this, of course, because I come from such a smaller culture, and then to relate it to such a nationwide study and see how climate change, the non-profitability of small holder farmers in particular, and I think for big farmers as well. Of course, if your entire crop or your entire rotation in one season is affected, that means a huge loss. And if you did not have a capital of your own, and if that capital had come from somewhere in the form of loans or in the form of subsidy that you had to pay, you might have had to pay after, that would change a lot of things. And like I said, what we read in the textbooks and how a farmer feels on the ground sometimes can be very, very different. And sometimes what we are inventing in the labs and what a farmer is using on the ground again can be very different. Because at least I'm from my own experience, I can tell you that farming in our cultures, in smaller cultures, in most of the rural areas in Pakistan is done on intuition. It means that one elder in the family who knows farming would come and say, oh, it's the sowing season. So sometimes you sow because your neighbor is sowing. You plow because your neighbor is plowing. You water because your neighbor is telling you, I think your crops need water. Or you have your own ways to test things. Like you look at it and you say, you have your own balances. So sometimes you kick the soil and find out. Sometimes you hold the soil in your hands. And they're very non-scientific, mostly based on intuition assessment of how you would grow your crop. So until Bhatti Saab joins us, I think I can start the discussion.
I had once taken part in a business competition where I used my PhD idea to be pitched as a future solution for water reclamation and food production in areas where water is scarce. And that's when I realized that numbers, and some numbers are really important, right? For example, 70% was a number that really stood out for me, because it is related to a lot of things that we've generally studied in this course. So for example, 70% of the world is covered with water. 70% of the water that we have that is available is used in agriculture. 70% of the water that is applied in agriculture is generally lost or wasted, or leaves the farm, and so on. And also, like I said, that we need to create 70% more food for our future generations in 2050. That is for the 9 billion people. So that's kind of the challenge right now. So that's what we want. That's what we're aiming for. And that is said to be only achievable if we improve our efficiencies. And our efficiencies can only be improved using appropriate technology. And so generally the numbers that researchers quote is that you would need up to 90% efficiency improving technologies, so that all of those things that we mentioned, that the farmer benefits from those technologies, and then there's a market, the supply chain is has evolved. And then the third most important thing to this would be the fact that you stop wasting the food, especially for smallholder farmers in the developing countries, where most of their produce is lost pre-harvest, as well as after we eat, or after it comes on our plate, or in anywhere in the supply chain. So these, I think, are the three numbers, and someone has raised their hand, so I can let you speak. Yeah, ma'am, may I? Yeah, please go ahead. Yeah, I have a question. So basically, you just mentioned that a lot of agriculture in third world countries such as, Pakistan is done on intuition, right? So do you think, is it really intuition or is it experience? Because if you dealt with something for a long time, that in sense of intuition, it does turn into a sense of experience, right? Yeah. Yeah, but we haven't had, there's not, a lot of it is not research and data supported. It's practice and culture and intuition, I think. So yes, of course, experience counts in, but a lot of these farmers that you'd meet are doing things exactly the way their grandparents did it, except for some intervention that a particular NGO or another organization has brought to them. But most of it really, and I said personal experience because this time when I was there, I could see people talking to each other. You can't do this. You can't graft a cherry now because it wouldn't work. That's a more kind of evidence-based decision and not intuition, because people have tested that past March, for example, you cannot graft cherries into another cherry to make sure that you have a nicer branch or a better breed on the same tree. So that's research. People have tried it past March, and then they tell each other that it's not going to work. But you should water your plants. Like, no one, no, it's all intuition. I think it's what you've seen, and it's what you've made peace with. That you, of course, they have their own ways. Like I said, they could hold the soil and see if it has moisture. They could kick the soil and see if it has moisture. People have their own sense of checking what they're checking. Or generally, when the leaves sort of wilt, they say now is the time to water it. Sometimes they allow it to go until that phase to water it. But I think most of it is not. It's not research and evidence based. It's just practice and culture, and really intuition. Yeah, who's next? Iman, do you want to say something? And then I think Bhakti Saab's joined us. I can invite him to speak.
Yes, ma'am, you talked about how we need to enhance food production, right, by 70% by using more efficient technology. But won't that adversely affect the environment? Because now technology means using genetically modified crops and chemical fertilizers and stuff. But won't that adversely affect the environment as well? So isn't that bad for the environment? Yeah. Remember when we, in the beginning, looked at the environmental impacts, we read about the IPAT equation, and we saw that how technology was going to improve the environment. So not technology has both positive and negative impacts. And yes, some technologies could have negative impacts, and genetic engineering has a lot of negative impacts, but it also has a lot of positive impacts. A lot of the food production, the improvement in supply, all of that, and then the kind of research that I shared, like to prepare ourselves for a future that we don't know what the future is going to look like. So just creating those scenarios and then increasing our produce based on that. So I think here I refer to technology, which I will take you to after we listen to Batisa, on what does a farmer think, how does a farmer think, how does a farmer make his decision, etc. So we will get back to that. And I think when I explain it, and I hope with the help of Dr. Abubakar, I've just put some slides and pictures, made it simple for you to see, to show how some of the basic as well as advanced technologies are now helping farmers to make those critical decisions, right? What to do, how to do, when and where to do it. So we would go back to that. भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? और आप अगर बात करें तो मुझे पता चलेगा कि आप का कनेक्शन कैसा है. हेलो जी, आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है. आपने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है भट्टी साहब? वो बैटरी डाउन थी, बिल्कुल. मैंने आपको बताया कि मैं बाहर था, जी जी. तो अभी घर जा रहा हूँ मैं. तो ठीक है. सारा दिन चूंकि बारिश की वजह से कोई 2-3 दिन तक एक्सपेक्टेड थी, तो हम लोग पीक पे था हमारा सीजन सोइंग का, वीट सोइंग का. तो ठीक सारा है. दिन बाहर ही गुजर गया. तो आपने टाइम 6 बजे का भी दिया था, तो हम तो फिर मैं गाड़ी में बैठा, तो अभी निकल रहा हूँ वहां से. तो मैंने कहा चले मैं मोबाइल से ही आपको टच कर लेता हूँ. ठीक है, ठीक है, जैसे आपको सही लगे. आप की मर्जी. अगर आप 10-15 मिनट बाद आना चाहते हैं तो मैं उस तरह भी आपको फैसिलिटेट कर सकती हूँ. अभी अगर आप बात करना चाहते हैं तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा. चलें, ठीक है, आप देख लेते हैं. ठीक है. मेरे ख्याल में आप बेटी साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि हम टेक्स्ट बुक नॉलेज और टेक्नोलॉजी और पेपर्स और रिसर्च में हम बहुत कुछ सीख और सिखा रहे होते हैं, लेकिन बहुत बार हमें ग्राउंड पे एक फार्मर्स की कम्युनिटी, फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशंस, आपके फैसले, आपकी फसलें, मौसम का आप लोगों पे फर्क, पेस्टिसाइड्स का यूज़, सीड कहाँ से आती है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, वो सब हमें पता नहीं होता. हम बस पेपर्स में या पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते जी कि जी. आपकी डायरी, सालाना डायरी कैसी लगती है. तो मैं चाह रही थी कि आप अगर बच्चों को बता सकें कि आपकी डे टू डे लाइफ क्या होती है, आपके मसले क्या होते हैं, और बहुत अच्छी बातें जो आप बताना चाहें बच्चों को. और ये सारे जी के अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो वो आपको सुन रहे होंगे. जी, ये देखें जी, ये जो एग्रीकल्चर है, ये हमारी मईशत में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटिंग है. और हमारी सारा साल पे जो हमारी प्लानिंग चल रही होती है, वो तो अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं, मसलन ये मशीनरी हो गई, बजटिंग हो गई, ये मनी होगी, वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें आपकी जो फ्यूचर की जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स पैटर्न आपने सेट करना होता है, ये सारी आपकी प्लानिंग में आती है. इसके अलावा जो इश्यूज हैं, इश्यूज की अगर हम बात करें, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इश्यूज जिनका हमें सामना करना पड़ता है. एक तो जब हम पैटर्न सेट करते हैं क्रॉप्स का, तो हमारी इनडायरेक्ट एक्सेस होती है मेन मार्केट तक. तो ये बहुत बड़ा हमें जो लॉस होता है फार्मर्स को. लेकिन इसके बारे में कोई भी हुकूमती पॉलिसीज जो हैं, वो इतनी मतलब किसान दोस्त नहीं होती, जिनकी वजह से हम लोग डायरेक्ट मार्केट को हम टच करें. ये मिडल मैन जो है, उसके मतलब एक करैक्टर, जो उसका करैक्टर होता है, उसके मतलब उसकी वसातत से ये सारी चीज़ें, हमारी जो गुड्स होती हैं, हम उनको मार्केट कर सकते हैं. तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे, हमें देखना पड़ता है.
जो इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन जो लोड शेडिंग इश्यूज होते हैं, पानी की कमी होती है, तो बाकी जो चीज़ें क्लाइमेट चेंज और मार्केट फ्लक्चुएशन जो होती है, ये एक फार्मर के पास की बात नहीं होती। इस हवाले से तो फिर ये एक एग्रीकल्चर का जो एक पेशा है, या ये जो हम कल्चरिस्ट होते हैं, ये हमारे लिए बहुत रिस्की होता है। तो एक तो ये है, बाकी जब हम फील्ड में जाते हैं तो मशीनरी का जो यूज़ है, ये मैं बड़े मतलब हमारे लिए एक बड़ा अलमिया है, ये फार्मर्स के लिए, कि हमारे जो ज़रूरी आलात होते हैं, ये बिल्कुल भी इनकी प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं होती कि मेंटेनेंस फ्री आप इनको अपना सीज़न के दौरान आप इनको इस्तेमाल कर लें। यानी एक इंडस्ट्री लेवल पे इनकी प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती। हम जो आलात इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी प्रैक्टिसेस के दौरान वो फ़ाल नहीं रहे। तो उससे टाइम का भी ज़िया होता है। फिर आपका एक सीज़न है, जैसे ये आप वीट वीट की सोइंग से मैं आ रहा हूँ, तो इसमें तकरीबन 1 महीना होता है नवंबर का हमारे पास। उसमें हमने हर तरह से अपनी सोइंग को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम होता है। जितना आप नवंबर के बाद जो आप सोइंग करोगे, वो हर दिन आपकी जो पैदावार, एक यील्ड गोल जो आप सेट करते हैं, वो आप नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जब आपकी प्रोडक्शन हो जाती है, उसके बाद फिर आपको पता नहीं होता कि ये आप इसको मार्केट कैसे करें। तो ये वो प्राइमरी इश्यूज़ हैं फार्मर्स के लिए। तो बस इनको टॉलरेट करना पड़ता है। पॉलिसीज़ जो हमारे यहाँ बनती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस की जो ज़िम्मेदारी है, वो उनको उनके ऊपर फिर चली जाती है। ये किसान दोस्त तो पॉलिसीज़ नहीं है, मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ, आप लोग भी जानते हैं। तो इस हिसाब से फिर ये इश्यूज़ जो हैं, ये फिर चलते रहते हैं। लेकिन इन्हीं इश्यूज़ में ही हमें सर्वाइव करना पड़ता है। बेटे साहब, आपने जो ज़िक्र किया यील्ड का और कैसे आपका कब आप सो करेंगे उसका यील्ड पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम 2 दिनों से यही पढ़ते रहे हैं कि हमारा जो गोल होता है या फार्मर का गोल होता है वो यील्ड इंक्रीज़ करना होता है, और आप क्या-क्या चीज़ें करते हैं, कौन से केमिकल्स का और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी यील्ड को इंक्रीज़? जी, बिल्कुल, बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो सबसे पहले जो एक चीज़ है, वो ये है कि आपकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं। जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं, उनके तहत तो अब मुमकिन नहीं रहा कि आप एक अच्छी पैदावार ले सकें, और इसके अलावा आपकी जो इन टाइम जो सोइंग है, जैसा कि व्हीट का सीज़न चल रहा है, तो ये अर्ली नवंबर में जो 15 से 20 नवंबर तक, बल्कि 20 की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। आपको जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप व्हीट सोइंग जो है, पहले हफ्ते, डेढ़ हफ्ते में अगर कर लें, तो जो भी आप गोल सेट करेंगे, वो भी करना पड़ता है। उसमें आप फर्टिलाइज़ेशन का जो है वो कैलकुलेट करते हो कि आपने कौन-कौन सी जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनको सिलेक्ट करना है। उसके अलावा फिर आगे चल के जब जर्मिनेशन मुकम्मल होती है, उसके बाद आप फर्स्ट इरिगेशन के साथ फर्टिलाइज़र बेसल डोज़ के अलावा शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर वीडीसाइड्स का मरहला आ जाता है, वीड्स को कंट्रोल करने का। उसके बाद जब आप वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू ये है कि अक्सर जेनेरिक कंपनीज़ की जो मार्केट में भरमार है वीडीसाइड्स की, एक तो उनका फसल के ऊपर स्ट्रेस भी आता है, दूसरा उनका कोई अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं मिलता, और ये चेक एंड बैलेंस किधर है हमें कोई पता नहीं चलता। अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो वीडीसाइड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उ उनके ऊपर भी हम इतना जो है वो हमारा भरोसा जो है वो अभी मतलब उनके ऊपर भी हमारा भरोसा इतना नहीं रहा, जितना मतलब उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो भी उस लेवल की नहीं आ रही। ये गुज़श्ता सालों से मुझे ख़ुसूसी तौर पे ये इश्यूज़ आए, लेकिन मैंने फिर अपनी प्रैक्टिसेस चेंज की। मैंने फिर जो रेज़िड्यू मैनेजमेंट थी, वो अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज किया और फिर उसकी तरफ चला गया। तो इस तरह मैंने अपनी वीड्स मैनेजमेंट को जो है वो मतलब इनिशियलाइज़ किया, उसको उसका आगाज़ किया। इससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। तो ये सारी चीज़ें, एक तो मार्केट में जितनी भी वीडीसाइड्स आ रही हैं, वो बिल्कुल उन कंपनीज़ का कोई पता ही नहीं होता। लेकिन फार्मर, अक्सरियत जो फार्मर्स की है, वो पढ़ा-लिखा फार्मर नहीं है। पहले ये कहते थे कि घर में कि जो बच्चा पढ़े ना, उसको कहते थे कि चलें इसको फार्मर बना दें, इसको खेती-बाड़ी का जो
जो जिम्मेदारी है वो दे दें। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ये अनपढ़ आदमी का काम नहीं रहा। अगर आप इंडस्ट्री लेवल का अब आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप इंडस्ट्री लेवल की एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में मतलब वो उन इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ता है, जिनकी बहुत पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जब आपको नहीं उसके बारे में इतनी अवेयरनेस, तो फिर जब आप उससे यूज्ड टू होते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो कि बाद में एक नुकसान का सबब बनती है। भट्टी साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, बच्चे भी अभी हाथ उन्होंने खड़े करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ बेसिक चीजें आप उनको बताएं इससे पहले कि वो आपसे सवाल पूछें कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितनी जी, जी। दफा आप लोग सो करते हैं, कौन कौन से क्रॉप सो करते हैं, कौन ये फैसला करता है कि कौन सा क्रॉप आप उगाएंगे, क्या आप कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं, सीड्स पे को आपको सब्सिडी मिलती है, कैसे आपकी प्लानिंग होती है, कोई फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है गांव में या एरिया में, कैसे ये सब डिसाइड होता है? जी, बिल्कुल इसके ऊपर कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं है। ये सब्सिडाइज़ करते हैं तो उस वो फार्मर तक सब्सिडी पहुँचती ही नहीं है। अब इन्होंने एक स्टिकर सिस्टम कर दिया तो वो तो 10 अगर फर्टिलाइज़र और सीड पे मैं चूँकि मेरा तो मतलब मैं तो बहुत थोड़ा-सा हट के करता हूँ मतलब फार्मिंग। तो मुझ जैसा जो फार्मर है उसको भी इसकी अवेलेबिलिटी जो है सब्सिडाइज़िंग जो इन्होंने शुरू की हुई है उसका बिल्कुल मैं तो मुस्तफ़ीद नहीं हुआ उससे। तो वो आम फार्मर के पास की तो बात ही नहीं है। अब देखें जनवरी से लेके आप दिसंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं। तो जैसे मतलब आप वेजिटेबल की तरफ जाते हैं, टनल फार्मिंग की तरफ जाते हैं। आप जो मेजर क्रॉप्स 2 जो आपका राइस और व्हीट जो है, ये जब आप स्टार्ट करते हो तो आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि जैसे ही जून, जुलाई स्टार्ट होती है, फरवरी में तो आप शुगर केन भी करते हैं। फरवरी में तकरीबन जो आपकी फसलात हैं, जो भी इलाकाई लिहाज से इंतखाब इनका किया जाता है, तो फरवरी हर किस्म की फसलों की जो बिजाई का के लिए बेहतरीन मौसम है। उसके बाद फिर अक्टूबर, सितंबर सितंबर स्टार्ट हो जाता है। सितंबर, नवंबर नवंबर में जो मेजर क्रॉप हमारी है ये व्हीट इसकी सोइंग जो है वो शुरू हो जाती है। ये तो इलाके के हिसाब से होता है या आपकी अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं या आपका एक क्रॉपिंग पैटर्न है जो आपने सेट किया होता है कि आपने कौन-सी अपना सोइंग जो है वो करनी है। लेकिन इसमें जो मैं अपनी बात करूँ मैंने ये 3 फसलों पे ज़्यादा काम किया शुगरकेन, व्हीट और राइस पे। फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग भी की जैसे आपने बात की कि दिसंबर की बात, तो नवंबर में मैं ये सोइंग में जब स्टार्ट करता हूँ व्हीट की तो उसके साथ मैं पीस जो मटर जिसको बोलते हैं मटर, व्हीट, कैरेट, रेडिश, शुगरकेन ये मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न में आ जाती हैं। अब तक जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं मैं ये 4-5 जो फसलें हैं ये एक ही मखलूत काश्त की कैटेगरी में मैं इनको लेके आया। तो इसमें ये यानी सारी कैरेट का वेजिटेबल का भी सीजन स्टार्ट हो गया और आपकी जो मेजर क्रॉप है जो व्हीट है वो भी ये लॉन्ग टर्म की होती है व्हीट। ये जब आपकी मिड अप्रैल में जाके इसकी जो बर्दाश्त होती है इसकी कटाई होती है तो इससे पहले जो शॉर्ट टर्म्स की जो क्रॉप्स हैं जैसे वो छोटी क्रॉप्स जैसे ये वेजिटेबल्स का जिक्र मैंने किया मटर ये तकरीबन 60-70 डेज में तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा कैरेट जो है ये रेडिश या शलजम ये भी शॉर्ट टर्म्स की होती हैं। ये बहुत जल्दी आप को मिल जाती हैं। आप इनकी हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। उसके बाद ये होता है कि इस तरह फार्मर एक सोचता है कि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको कैसे एनहांस करूँ। तो ये सबसे जो ज़्यादा डिपेंडेंट है वो आपकी प्रैक्टिसेस पे होता है कि आपने कौन-सी प्रैक्टिसेस सिलेक्ट की हैं जिसके तहत आप इस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न सेट कर लें, जिससे आपकी बॉटम लाइन जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एनहांसमेंट हो सके। ठीक है, एक और सवाल मेरा आपसे होगा, हम अभी इस पूरे कोर्स में यही पढ़ते रहेंगे कैसे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स तो ना सिर्फ क्रॉप के लिए, पूरे माहौल के लिए बहुत खराब है, क्योंकि वो माहौल में बहुत अरसे तक रहते हैं और हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर हमने मुझे याद है जब हम ओकाड़ा गए थे तो वहाँ पे कुछ फार्मर्स ने हमें कहा था कि वेस्ट वाटर को हम इस्तेमाल, गंदे पानी को इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए, और वो हमें कह रहे थे वो हम तो नहीं खाते वो जो हम आपको बेचते हैं। फिर एक तो ये सवाल कि आप इस तरह की जो जो चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में, अब फार्मर्स को भी पता है कि ये हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं है,
क्या वो अभी जी भी बिल्कुल। ऑन ग्राउंड हो रही हैं? क्या जो मैं फ्रूट यहाँ लाहौर में खाती हूँ या कोई सब्जी खाती हूँ, मुझे कितना मोहतात रहना चाहिए उसके लिए, या मुझे कहाँ से अगर मुझे नहीं खाना इस तरह का कुछ, तो मैं कैसे इंश्योर करूँ कि मैं कहाँ जाके कोई ऐसा फल लूँ जो मुझे पता हो कि उस पे इस तरह केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं हुआ। और दूसरा इसी से जी रिलेटेड बिल्कुल। सवाल मेरा आपसे ये भी था कि क्या आपने प्रॉफिट की बात की, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, कितना कितना प्रॉफिटेबल है? आपके इर्द-गिर्द कैसे केस स्टडीज हैं जिनकी आप मिसाल दे सकते हैं? जी, मैं आपको ये बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने फिदी वाटर जो इरिगेशन सिस्टम है, उसकी आपने बात की, तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसके ऊपर फार्मर्स इसमें कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो इस तरह करते हैं, जो शहरों के नज़दीक जो मतलब फार्मिंग एग्रीकल्चर करते हैं, उनका तो वो बिल्कुल जो गंदा पानी है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को मैं समझता हूँ और इस चीज़ का एतराफ़ भी करता हूँ। तो बाकी ये आपके पास सिस्टम्स हैं कि आप उन चीज़ों को, जैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी प्रैक्टिसेस की बात करूँ, तो मैंने सोलर ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, उनके आगे पॉन्ड बने हुए हैं। उन जो पॉन्ड हैं वो वाटर रिजर्वायर समझ लें, उसमें मछली भी मैं छोड़ देता हूँ। वो 1-1 एकड़ में 220 बाय 220 का एक पॉन्ड होता है, फ्रेश पानी का पॉन्ड होता है। उसमें पानी डेली बेसिस पे आता है और उसमें आप जो ये फिशरीज़ का जो सिलसिला है, एक तो आपकी अर्निंग में भी इज़ाफ़ा हो जाता है और फिर वो फर्मेंटेड पानी होता है, जो आपकी फसलों को लगता है। जो केमिकल वाला पानी है, जैसे कि ये सेम नाले हैं, उनमें से ज़िम्मेदार जो हज़रात हैं, वो उठा के पानी फसलों को लगाते हैं और बाज़-औक़ात तो उनकी फसलें भी तल्फ़ हो जाती हैं, उनको कोई पता नहीं होता बाज़-औक़ात फैक्ट्री से पीछे जो केमिकल आने वाला है वो कितना ज़हरीला है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हाफ़िज़ाबाद में एक ऐसा हुआ था, पूरा सीज़न ख़राब हो गया था लोगों का। लेकिन ये प्रैक्टिसेज़ चलती रहती हैं। तो ये मैं बिल्कुल डिनाई करूँगा इस बात को कि केमिकल वाला पानी जो है, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फर्टिलाइज़र की आप बात कर रहे थे, फर्टिलाइज़र को आप तब डिक्रीज़ कर सकते हैं जब आपका सॉइल स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होगा। ये कहना कि आप फर्टिलाइज़र को बिल्कुल बंद कर दें और आपकी जो यील्ड है या प्रॉफ़िटेबिलिटी है या जो पैदावार है वो इंक्रीज़ करे, वो नहीं करेगी। इसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिसेज़ चेंज करनी पड़ेंगी। आपको प्रीवियस ईयर्स जो ईयर्स क्रॉप्स रेज़िड्यू है उसको मैनेज करना पड़ेगा। फसलों की बाकियात को अपनी ज़मीन में छोड़ना पड़ेगा। फिर आप फर्टिलाइज़र को क्विट कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता। जबकि अब हमारी ज़मीनों का जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल पुअर है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ, वो फर्टिलाइज़र के बगैर तो बिल्कुल मतलब जो पैदावार है वो नहीं ले पाएँगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फसलों की बाकियात को मैनेज करें। इकोसिस्टम जो है कुदरती ज़मीनी हयातियात का, उसको आप बहाल करें तो आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है, वो बहाल हो सकेगी। अदरवाइज़ जैसे प्रैक्टिसेज़ हैं, उनमें फर्टिलाइज़र की वजह से कंटामिनेशन तो आपकी सॉइल में भी बढ़ती जा रही है और ज़ाहिर बात है जब उसमें से आप फसलें उठाते हैं, अगर कोई भी फ्रूट आप लेते हैं, जैसे ये टनल फार्मिंग वाले हैं, वो सुबह को वो सेकंड टाइम को वो फंजीसाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं चूँकि उसको बीमारियाँ लगती हैं और सुबह पिकिंग होती है, ये जो खीरा वगैरह सैलेड के लिए आप सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत पॉइज़नस होता है। सेकंड टाइम आप मॉडरेट टेम्परेचर हुआ तो आपने उसको फंजीसाइड के स्प्रेज़ किए, उसके बाद सुबह उसकी पिकिंग होगी, तो ये मार्केट में आ गई ये सारी चीज़ें। ये प्रैक्टिसेज़ चेंज करनी पड़ेंगी आपको, सॉइल स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप केमिकल से जान नहीं छुड़ा पाएँगे। सही। भट्टी साहब, मैं कुछ स्टूडेंट्स के सवाल लेती हूँ। नादिया, आप अगर पहले पूछना, जी। फिर अज़हान आप। जी Ma'am, मैम, my चलो question मैम। was more related नादिया, to what you have अज़हान, asked. So, नादिया, अज़हान फिर मनाल। ठीक है, सो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। आपने मेंशन किया कि हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो बेसिकली ख़राब है और जिसकी वजह से हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है और फिर उसके बगैर गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। तो आप मुझे कोई वजह बता सकते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है वो पुअर है, हो गई है, पहले नहीं थी, अब हो गई है? एक पहला सवाल ये है।
क्योंकि आपने अभी जिस तरह मेंशन किया कि फर्टिलाइजर लेना यूज करना जरूरी हो गया, अदरवाइज ये कि वो हमें यील्ड और प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही। तो मुझे जी कुछ एक पॉइंट्स अगर उसके बारे में बता दें। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने मेंशन किया कि हम लोग जो हैं वो मिक्स वेजिटेबल्स और वो सारा कुछ भी अ, अ, कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, और आपने 2-3 और भी फसलों का मेंशन किया, वीट का कहा, राइस का कहा। तो जी जहाँ तक हमने पेपर में पढ़ा है तो उसमें ये पढ़ा है कि कुछ जो हैं वो डिफरेंट उनको पानी चाहिए होता है, कुछ ज़्यादा ऐसी फसलें होती है जिनमें पानी ज़्यादा होता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जब मैं फसलों में होता है तो कोई नालियाँ वगैरह बनी होती हैं जिसके ज़रिए पानी जो है वो पूरे फसलों तक फैलाया जाता है। एक जगह जी से जी वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो नालियाँ जो होती हैं, अब वो जिस तरह उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस तरह की उनको डायरेक्शन दी जाती है तो पानी पूरी फसलों में जाता है। तो इस तरह फिर फसलों की कंट्रोल किस तरह किया जाता है पानी को, क्योंकि कुछ जो है वो अब आपके पास भी लिमिटेड स्पेस होगी, मतलब आप इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो इतनी ज्यादा जगह है कि आपने मखसूस कर दी होगी एक जगह कि मैंने यहाँ पे ये करनी है, यहाँ पे ये करनी है। तो इस चीज को किस तरह आप मैनेज करते हैं, और ये हर्डल है या नहीं है? जी बिल्कुल, मैं पहले आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ। आपने ये कहा कि जो सॉइल फर्टिलिटी है उसके बारे में जो आपने सवाल किया उसका मैं बता देता हूँ। उसमें ये है कि ये मैं नहीं कह रहा एज़ अ फार्मर, ये पूरी दुनिया के जो सॉइल फर्टिलिटी के हवाले से रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी साबित कर दिया, और हमने खुद अपनी प्रैक्टिसेस, जब मैंने अपनी बात करता हूँ कि मैं जब नो टिलेज पे सेट हुआ 5-6 साल पहले, मैं भी एक रवायती काश्तकार था। तो सर फोड़-फोड़ के सारी, मतलब वही जो हम जहाँ पे आधा बैग डालते थे फर्टिलाइज़र का, तो फिर वो 1 बैग, फिर 1.5 पे, 2 पे, फिर 2.5 पे, फिर 3 पे जा रहे थे। तो मुझे बैठे-बैठे एक दिन ये ख़्याल आया कि यार हम ये फर्टिलाइज़र को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी जो यील्ड है वो कम होती चली जा रही है। तो ये क्या मसला क्या है? तो मैं जहाँ से मुझे जिस इस चीज़ ने क्लिक किया, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके रिसर्च पेपर्स भी सॉइल फर्टिलिटी के हवाले से स्टडी किया करता था। लेकिन मैं अपनी जो ज़मीन थी, जो मुझे विरासत में रकबा मिला, तो उसमें मुझे पुरानी वट्टें और खालें तोड़ने का बड़ा क्रेज़ था। तो मतलब एक अलाइनमेंट में सीधे प्लॉट बनाने का। तो जो पुरानी वट या खाला मैं तोड़ता था ना, तो जब मैं फसल की बिजाई करता, तो उस वाले पोर्शन में जो फसल होती, वो बहुत ही लश ग्रीन होती और इतनी विगरस होती, जो बाकी जो फसल बाकी एरिया में होती, वो उसके मुकाबले में नहीं आती थी। तो ये एक ज़हन में बात है कि ये वजह क्या है, ना तो मैं बाहर से मिट्टी लेके आया, ये कोई और जगह भी नहीं है, उसी मिट्टी का हिस्सा है, तो ये क्या वजह है? तो इस तरह ये मुझे पता चला। तो जब मैं इसके इसके रिसर्च में गया, तो मुझे पता चला कि जो चीज़ इंटैक्ट होती है, जो आपकी ज़मीन जिसको आप प्लॉइंग नहीं करते, सारा साल, कई सालों तक वो इंटैक्ट पड़ी रहती है। तो उसके अंदर जो अर्थवर्म्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ वो डेली बेसिस पे होती रहती है, उनके अंदर बरोस बन जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि आप उसको छेड़ते ही नहीं है। जितनी भी, मतलब वो रेच, आप पानी लगाते हो तो वटें रेच पीती हैं, वो डायरेक्ट मतलब पानी में डूबती नहीं है वटें जो होती हैं। तो ये जो रेच पे रहती हैं, उस उसका मेरे ज़हन में ये आया, तब मैं ये रेज़ बेड की तरफ गया। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी कि ज़मीन के नीचे जो एक सिस्टम है अर्थवर्म्स का, माइक्रोब्स का, तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ें बनाई हैं। तो हमने साल से ज़मीन का सीना चीर के, तो आज तक तो हमें तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। एक तो ये होता है कि चलें आप ऊपर को जाएँ, आप नीचे को जा रहे हैं। तो इस वजह से 5-6 साल पहले मैंने ये प्रैक्टिसेस नो टिलेज पे शुरू की। फिर आगे जब नो टिलेज पे सेट हुआ, तो फिर मुझे ख़्याल आया कि ऑर्गेनिक मटेरियल मैं कहाँ से लूँ? जिसकी वजह से मैं मतलब अपने ऑर्गेनिक मैटर में इज़ाफ़ा कर सकूँ। तो फिर मैं बाहर से मटेरियल लाने की बजाय मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि मैं जो फसलों का रेज़िड्यू है, इन्हीं को मैनेज करूँ। इन्हीं को यहीं पे मैं डिकम्पोज़ करूँ। तो उनकी जब मैंने उनको छोड़ना शुरू किया अपनी अपनी ज़मीन में, तो उनकी जो माइक्रोबियल जो डिकम्पोज़िशन है, जब वो स्टार्ट हुई, जब वो ह्यूमस बनना शुरू हुआ, कार्बन बनना शुरू हुआ, तो मुझे पता चला कि यार हम तो खुदकुशी करते रहे हैं आज तक, कि मतलब मैच स्टिक रगड़ के जो भी फसलों की बाकियात थी उनको आग लगा के हम खत्म कर देते थे। तो पहले साल में ही मुझे ये पता चल गया कि जो फसलों की बाकियात है, उनसे हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है, ये मुझे पहले साल ही पता चल गया था। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था।
तब जाके मुझे 5-6 साल लगे, तो मैक्सिमम इसका जो रिजल्ट मेरे सामने जब आया, तो मैं तो फर्टिलाइजर फिर ऊपर की बजाय मैं नीचे को आना शुरू हो गया। तो मैंने तो 10 से 20% जो फर्टिलाइजर है वो कम कर डाली। तो उससे मेरी जो बाकी रवायती तरीकेकार से जो काश्तकारी कर रहे हैं, उनसे तकरीबन 5-10 माउंट्स पर एकड़ जो मेरी है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो ये हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं गलत, जो हम प्रैक्टिसेस जो हमने अडॉप्ट की हुई हैं, एक तो ये सबसे बड़ी वजह है हमारा सॉइल स्ट्रक्चर पुअर होने का। तो ये हमें प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेगी। मेरा तो मतलब मकसद सा तारीफ है मेरी। तो अगर आप मैं आपको बाद में लिंक या कुछ इस तरह आपसे कोई मुलाकात हुई तो मैं एक आपको लिंक शेयर करूंगा। वहां पे 5-6 सालों की प्रैक्टिसेस हैं जो बड़ा इन डिटेल मैंने वहां पे ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने पेश की हैं। बाकी जो आप दूसरी बात कर रहे हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात, मिक्स्ड क्रॉपिंग की, तो वो कैसे, उसमें हमने वही प्रैक्टिसेस की बात आ गई। जब आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी होती है तो उसके लिए आपको सारी फसलों को रेंज पे रखना पड़ता है। मसलन आप एक बेड बना लेते हो, साइज उसका कोई भी आप रख लेते हैं, 24 इंच रख लेते हैं, 42 इंच रख लेते हैं, जो मतलब ये कोठे होते हैं, वटे जिसको बोलते हैं, रेस बेड, चले रेस बेड कह लें, रेस बेड बना के। तो मैं अब वीट की बात करता हूँ, जैसे अब वीट का सीजन है तो मैं 43 इंच का रेस बेड बनाता हूँ, उसके ऊपर 5 लाइनें मैं गंदम की लगा देता हूँ, और जो साइड वाली 2 लाइनें हैं उनमें मैं मटर की लाइनें लगा देता हूँ। जो सेंटर में 3 पोर्शन बचते हैं, यानी लाइन टू लाइन 9 इंचेस की स्पेसिंग होती है, तो वो मुझे काफी स्पेसिंग मिल जाती है। तो उसमें आप रेडिश की एक लाइन लगा लेते हैं, एक तरफ आप कैरेट की लाइन लगा लेते हैं। तो इस तरह जो फरोज होती हैं, जो जिनमें आप जो वाटर चैनल्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उनमें आप फरवरी में, गंदम अभी खड़ी होती है, गंदम की कटाई तो होती है मिड अप्रैल में, तो फरवरी मार्च में गन्ना लग जाता है। उस वक्त 2.5 फुट तक उसकी मतलब हाइट होती है गंदम की। तो जो पीस मटर की मैंने बात की, वो आपने पहले अपना 50 से 60 दिन तक आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली फरोज में बैठ के, उसके बाद फरवरी में आपने उसमें गन्ना लगा दिया। जब आपने मिड अप्रैल में कटाई करनी है गंदम की, तो हार्वेस्टर का जो रेजिड्यू है आपने हार्वेस्टर से कटाई करनी है। जो बाकी जितना भी रेजिड्यू गिरेगा वो गन्ने के ऊपर गिरेगा। तो मिड अप्रैल में आपने कटाई वीट की कर ली, उसके बाद आपने फरवरी में जो गन्ना लगाया वो नवंबर दिसंबर तक वो आपका गन्ना आ गया। फिर आपने कोई उसमें फसल नहीं लगानी। जैसे ही आपकी कटाई होगी तो उस वक्त फिर आपका गन्ना शुरू हो गया। तो जब आपने नवंबर दिसंबर में गन्ने की कटाई की तो एक क्रॉपिंग साइकिल बन जाता है ना। जब आप दिसंबर जनवरी में गन्ने की कटाई करें, नवंबर से लेके फरवरी तक कटाई होती रहती है। फरवरी में रेटून क्रॉप में फिर आप जो ये लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं, जैसे ये मूंग होगी, इस तरह की आप फसलें जो हैं वो लगा सकते हैं। वो भी तकरीबन 65-70 दिन की होती है। तो इस तरह आप अपना एक क्रॉपिंग पैटर्न सेट करते हैं, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जी, मैं बस इसके ऊपर एक कमेंट करना चाहूँगा मुख्तसर सा। मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया है कि जो गाय भैंसों का जो होता है वेस्ट वगैरह, जो जिसे गोबर कहते हैं, तो जी जी उसको जलाने के लिए भी यूज हो रहा होता है, या फ्यूल के तौर पे। तो आपने जी जी उसको यूज किया है? आपका क्या एक्सपीरियंस है कि उससे जी फर्टिलिटी में इफेक्ट पड़ा है, या आप लोग की प्रैक्टिस नहीं है? मैं आप बिल्कुल जो आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक मैटर का अगर कह रहे थे। जी, अगर जी। तो आपको पुराना मिल जाए उसका फर्क पड़ता है। हम्म। अगर आप ताज़ा फार्म यार्ड मेन्योर जब आप फसलों को डालेंगे तो उससे फसल आपकी जल भी सकती है, उसकी मिकदार भी देखना पड़ती है। लेकिन उसका बेहतरीन हल एक ये है कि आप माइक्रोब्स इस्तेमाल करें उनकी डिकम्पोजिशन के लिए। अभी मैंने इस साल 2 एकड़ मैंने तैयार की है, जिसके ऊपर मैंने फार्म यार्ड मेन्योर तकरीबन उसकी एक लेयर बिछा दी 3 से 4 इंच। लेकिन उसको मैंने माइक्रोब्स की मदद से डिकम्पोज कर दिया और उसी में मैंने वीट लगा दी, जो कि 100% ऑर्गेनिक है। और बाकी जो मैं इनऑर्गेनिकली कर रहा हूँ वो तो उसके मुकाबले में नहीं आ रही। अभी तो उसकी जर्मिनेशन कल मैंने ये नोटिस किया, जब देखा उसकी 100% जर्मिनेशन मुकम्मल होगी, तो उसके उसकी कलरिंग जो है उसके वो नजदीक भी नहीं आ रही दूसरी इनऑर्गेनिकली जो मैं मतलब जिसमें फर्टिलाइजर यूज करता हूँ। तो ये जो फार्म यार्ड मेन्योर है, अगर अवेलेबल हो तो इससे बढ़िया तो और कोई चीज नहीं है।
कि जी अगर आप डाल सकें अपनी जी फसलों को, अ, अपने खेतों में जी इसको डाल सकें। सर इसमें ये है कि आप लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं या सहूलत है कि सॉइल की, क्योंकि डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि अगर कोई इस तरह की टेस्टिंग हो या कोई सहूलत अवेलेबल हो आपके पास, कि आप पहले देख लें कि इस जो जमीन, ये जो जमीन है जो मेरे पास है, इसकी फर्टिलिटी कितनी है और मुझे कितने फर्टिलाइजर यूज करना है या नहीं करना, कोई इस तरह की फैसिलिटी हो या कोई सेंसर हो या कोई इस तरह जी की बिल्कुल डिवाइस नहीं आप है, तक पहुंची हो। बिल्कुल वो पोर्टेबल सेंसर्स मौजूद हैं जो कि आपको एक्यूरेसी नहीं देते। अच्छा बाकी जो हुकूमत की लैब्स हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि आप उनका जो एनालिसिस है वो आप बिल्कुल 100% आपको मिले। उन्होंने एक पैटर्न तैयार किया होता है, वो वहाँ पे हमारी तो प्रैक्टिसेस होती हैं, यही तो हम बेचारे फार्मर्स का हाल होता है। हम सैंपल जब उनको देते हैं तो मेरा तो कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ जहाँ पे वो सैंपलिंग पड़ी होती है, तो जहाँ वो बैठे होते हैं उनकी लैब, तो सारों के सैंपल जो होते हैं वो मिक्स पड़े होते हैं। उनमें से किसके सैंपल का अंदाजा ठीक होगा कि जिसको वो देंगे, बस वो उसको प्रिंट कर करके दे रहे होते हैं। तो उसमें किसको पता चलेगा कि मेरी ज़मीन में भी ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से हो, तो इससे ये ना सिर्फ़ आपकी बचत होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। अगर आपकी ज़मीन में फास्फोरस की ज़्यादती है, तो आप फास्फोरस ना डालें। अगर पोटेशियम सल्फेट की ज़्यादती है, तो आप पोटेशियम सल्फेट को कम करें। तो ये तो स्मार्ट फार्मिंग की कैटेगरी में चीज़ें आ जाती हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो या हमारा जो ज़मीनी तज्ज़िया है, वो 100% हमें मिले। हमें पता हो वाक़ई हम तो अब मेरे तो बहुत मतलब इसमें मैं जितना जैसे नमाज़ से फार्मिंग करता हूँ, तो बहुत कम अक्सरियत में फार्मर्स हैं जो इस तरह करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो करते नहीं हैं, लेकिन अभी तक मैं अपनी ज़मीनों का एनालिसिस नहीं करवा पाया, क्योंकि मेरा यकीन या मेरा भरोसा या मुझे ये कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं अगर अपनी ज़मीनों का तज्ज़िया कराऊँ तो वो मुझे ठीक मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ज़मीन का पल्स रीडिंग जैसे समझ लें, मैं अपने ज़मीनों की पल्स रीडिंग करता हूँ। मुझे पता चलता है फसलों की ग्रोथ से, फसलों की रंगत से, कुछ सिम्पटम्स होते हैं। अगर ज़िंक की कमी हो, नाइट्रोजन की कमी हो, तो हम लोगों की प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं। हम यूँ समझ लें कि जैसे पुराने ज़माने में जब लैब्स नहीं होती थी, तो नब्ज़ देखते थे डॉक्टर हज़रात या हुक्मा जो थे, वो नब्ज़ देख के अंदाज़ा लगाते थे, या जो भी आँखों का देखते थे या कुछ भी था। मतलब अब तो कोई भी डॉक्टर बगैर आपकी लैब के आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन ही नहीं, आपको मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब नहीं करेगा। तो हमारी ये प्रैक्टिसेस हो चुकी होती हैं, हम फसल से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको किस चीज़ की कमी है, क्योंकि हमारी बार-बार ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो रिपीट हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास एक तरीक़ेकार है। इसमें मतलब कुछ अंदाज़ा गलत भी साबित हो जाता है बाज़-औक़ात, लेकिन हमें हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हमारे यहाँ जितनी लैब्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, उनका जो एनालिसिस है हम उससे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हैं, और ये होना चाहिए। अगर ये पहले आप डिसाइड कर लें, अपनी ज़मीन का तज्ज़िया कर लें, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको आपका टाइम भी बचेगा और आपको बचत भी होगी और आपकी फसल भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगी। जब आपको पता होगा कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, जिसकी डेफ़िशिएंसी होगी वही आप इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे साथ क्या होता है, जिसको नहीं पता होता, अगर फ़ॉस्फ़ोरस पहले से ही ज़मीन में ज़्यादा है तो हम उसको बैग्स आफ्टर बैग्स फ़ॉस्फ़ोरस के डालना शुरू कर देते हैं। नाइट्रोजन की अगर ज़्यादती है तो हम नाइट्रोजन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी ये बिल्कुल पहले से डिटरमिन होना चाहिए, इन फार्मर को पता होना चाहिए, फिर जाके आप प्रॉफ़िटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी हमें सहूलत मौजूद नहीं है। इसके ऊपर कोई भी हमें जो हुकूमत की तरफ से जो सहूलत है, वो बिल्कुल बिल्कुल भी मुयस्सर नहीं है। मनाल? अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये है कि शुरू में आपने पॉलिसीज़ का ज़िक्र किया था कि ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कभी-कभी फार्मिंग प्रैक्टिसेज़ में रुकावट पैदा कर सकती हैं। तो आप वज़ाहत कर सकते हैं कि ऐसी कौन-सी पॉलिसीज़ होती हैं और इनको मतलब बेहतर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
और दूसरा सवाल ये है कि आपने ये भी बोला था कि कभी-कभी सीजन में ऐसा होता है कि सोइंग में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि नवंबर में स्पेशली शुरू शुरू में। और आपने बोला था कि प्रोडक्शन के बाद आपको मार्केट करने में मसला हो जाता है। तो जो क्रॉप्स, जो लेफ्ट ओवर क्रॉप्स हो जाते हैं, जो मार्केट तक नहीं पहुंचते, तो उनको जी आप कैसे मतलब हैंडल करते हैं? वो ज़ाया हो जाते हैं या वो उनका क्या हो जाता है? जी, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। जैसे आप वीट की बात कर ली, वीट को हुकूमत परचेज करती है, बाकी राइस की फसल को हुकूमत परचेज नहीं करती। वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाती हैं चीज़ें। वो उसके ये जो मिडल मैन है या बाकी जितने भी ये राइस जो एक्सपोर्टर हैं, हम उनके रहम करम पे चले जाते हैं। तो जैसा कि वीट का पिछला सीज़न, वीट की जो हमारे मुल्क की ज़रूरियात थी वो पूरी ना हो सकी, तो हमें तो सीड भी नहीं रखने दिया हुकूमत ने। हमें 20 से 25 मन से ऊपर रखने की इजाज़त ही नहीं थी। हुकूमती मशीनरी जो है वो घर-घर फार्मर्स के घर-घर में छापे मारती थी कि इन्होंने स्टोर तो नहीं की हुई गंदम। उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब हमसे गंदम जो है वो हासिल की। और अब जो राइस का जो सीज़न है इसमें हुकूमत परचेज़ नहीं करती। ये हमें जो है ओपन मार्केट में हमें सेल करनी पड़ती है। तो उनमें ये होता है कि ये जो जितने भी ब्रोकर हैं और ये जो राइस एक्सपोर्टर हैं, इनकी एक मीटिंग हो जाती है। वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे ही जो पहली-पहली खेप पहुँचती है हमारी फसलों की मार्केट में, तो उसमें ये स्टार्ट में कुछ रेट देते हैं, उसके बाद ये कम करना शुरू कर देते हैं। यानी उनको पता होता है कि ये इन सीज़न चीज़ें आ गई हैं, ये और कहाँ इसको लेके जाएँगे, गवर्नमेंट की तो परचेज़ है नहीं। जैसे एक व्हीट का एक फिक्स रेट होता है, चावल की फसल का कोई रेट नहीं होता। ये 2 मैं मेजर जो क्रॉप्स हैं उनका ज़िक्र कर रहा हूँ, बाकी का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो वो जैसे-जैसे मतलब मार्केट जो फ्लक्चुएशन है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा है क्लाइमेट चेंज और ये जो मार्केट फ्लक्चुएशन है, ये फार्मर्स के इख्तियार में नहीं होती। ये जिस तरफ जा रही होती है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई खरीदारी नहीं होती और फार्मर मजबूर हो जाता है। इसमें जो फ़ायदा हासिल होता है, वो मिडलमैन को हासिल होता है, डायरेक्ट फार्मर्स को हासिल नहीं होता। चूँकि ये हम इनडायरेक्टली हमारा इसमें जो हमारी एक्सेस होती है ओपन मार्केट में, यो जो मेन मार्केट होती है, इनडायरेक्टली हमारी एक्सेस होती है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है हमारी। तो बाकी आप दूसरी चीज़ें मैं आपकी तवज्जो उस तरफ थोड़ी-सी मबज़ूल करवा दूँ कि जो सब्सिडी सेक्शन है गवर्नमेंट का, आप जैसे आलात की बात बात कर लें, ये पिछले साल इन्होंने जो बैंड प्लेस एक जो ड्रिल है, उसके ऊपर इन्होंने सब्सिडाइज़ किया गवर्नमेंट ने, जबकि वो हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। अब चावल के बाद वो जो बैंड प्लेस जो ड्रिल है जिससे हम व्हीट सोइंग करेंगे, वो चावल की फसल की बाकियात में तो वो ड्रिल कर ही नहीं सकती, वो सोइंग कर ही नहीं सकती। वो हमारे किस काम की? वो उन लोगों को चाहिए जिन्होंने उन इलाकों में चाहिए जहाँ पे राइस की फसल जो है उसकी काश्त नहीं होती। वहाँ पे अगर वो काम आ सके तो आ सके, उसके लिए जो लैंड प्रिपरेशन है, वो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, तब जाके वो उसमें सोइंग करती है। एक तो हमें इम्प्रॉपर जो हमारे ज़रई आलात हैं, वो वो उसके ऊपर ये सब्सिडाइज़ गवर्नमेंट कर रही है, जबकि जो आलात चावल की बाकियात में जिन्होंने सोइंग करनी होती है, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। उनकी प्रोडक्शन ही नहीं है हमारे मुल्क में। तो हमें ऊपर से जब हम जैसे राइस की कटाई के बाद अब व्हीट सोइंग का सीज़न है, तो ऊपर से दफ़ा 44 का इनेकाद हो गया कि जब आप बाक़ियात को आग लगाएँगे, तो उसके आपके खिलाफ एफआईआर कटेगी। लेकिन एफआईआर तो काट रही है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स का इज़ाफ़ा जो है उसका जो ज़िम्मेदार है वो फार्मर है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारा भी उसमें 20-25% हमारा भी उसमें हिस्सा है कि हम पोल्यूटेंट्स में इज़ाफ़े का सबब बनते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी जो इंडस्ट्रियल जो ज़ोन्स हैं, वो भी बनते हैं। यानी इसके ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। हमें तो ये कह दिया कि आपने धान के जो बाक़ियात हैं, उनको नहीं जलाना, लेकिन उसमें जो सोइंग करनी है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो तो हमें नहीं मतलब दिया या उसका हल तो हमें नहीं बताया ना। अब ये वो प्राइमरी इश्यूज़ हैं फार्मर्स के लिए, यानी हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं, वो इस तरह होनी चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे आपको। अब वो जो नो टिल सीडर्स हैं,
वो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर सब्सिडाइज करे, उसको इंडस्ट्री लेवल पे बनाए, ना कि मतलब लोकल जो हमारे फैब्रिकेटर्स हैं उनका तो स्टैंडर्ड ही नहीं है और वो चलता ही नहीं है। हम लोग 2 एकड़ 3 एकड़ की जब सोइंग करते हैं उसके बाद फिर हम उसको मार्केट लेके भाग रहे होते हैं, उसकी कोई ना कोई चीज टूट जाती है या कहीं से मिसिंग हो रही होती है या जो लाइन सोइंग हो रही होती है, तो बीच जहाँ पे एक दफा रुक जाए, एक ही लाइन में रुक जाए, तो आप देखेंगे पूरे एकड़ में जब एक लाइन में बीच रुक गया तो आपका कितना नुकसान हुआ। ना तो आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं और ना दोबारा आप उसकी सोइंग कर सकते हैं। तो इस तरह जो ज़रूरी हालात हैं उनका बड़ा फुकदान है। ये एक बड़ा मसला है ज़िम्मेदारों के लिए। हमारे यहाँ जो लोकल प्रोडक्शन होती है वो कभी भी इसका हल पेश नहीं कर सकते। पॉल, आप नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहिब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा टॉपिक से हट के है। जी मेरा ताल्लुक हाफिजाबाद के साथ ही एक इलाका है गुजरांवाला, उधर से है। जी जी तो वहाँ के मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ की जो ज़रूरी ज़मीनें हैं वहाँ पे अक्सर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो इन्वेड कर रही हैं उस जगह को। तो इसके बारे में ज़मींदारों का क्या ख्याल है, या इसके ऊपर लॉज कुछ हैं, या फिर इसके आपके बारे में, आपको अगर इस सिचुएशन में कोई डाला जाए तो आप क्या करेंगे? ये क्योंकि एक किस्म की एक ज़्यादती है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, और ये हाफिजाबाद गुजरांवाला हो गए, ये पाकिस्तान के ज़रखेज़ तरीन इलाके हैं। तो बिल्कुल जी इसके बारे में अगर आप कुछ कमेंट करें। बिल्कुल है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। चाहे आपका टॉपिक से हटके है, अब हाफिजाबाद जो है ये है राइस बेल्ट। मखसूस जिस तरह आप जनूबी पंजाब चले जाओ वहाँ पे जो कॉटन कॉटन बेल्ट है, और ये जो हाफिजाबाद और गुजरांवाला है ये है राइस राइस बेल्ट। और ये देख के बड़ा अफसोस लगता है, हमारे मेरा डिस्ट्रिक्ट भी हाफिजाबाद है, वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज इतनी इतनी बन रही हैं, इतनी बन रही हैं कि जितनी मतलब एक सरखेज जो आपकी जमीन है, जो बिल्कुल फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर, ये तो अब हुकूमत को चाहिए था ना। अब जैसे इस्लामाबाद उन्होंने पहाड़ों पे बना लिया, पहाड़ों पे तो काश्तकारी नहीं हो सकती, इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए थी ना, इनको रोकना चाहिए था। अब ये डायरेक्ट जिम्मेदार तो नहीं बना रहा, ये ऊपर से जो मतलब बिजनेसमैन आ रहा है वही महंगे दामों मतलब खरीद के अब जो जरूरतमंद फार्मर्स होते हैं या जो खुद प्रैक्टिसेस नहीं करते, वो भी अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसके सिलसिले में वो फिर अपनी जमीनें सील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि वो जितनी अगर ये सारी जमीनों के ऊपर फर्टाइल लैंड के ऊपर अगर हाउसिंग सोसाइटीज बन जाएंगी तो ये जो खुराक का मसला है इसका कोई सलूशन फिर हुकूमत के पास इसका सलूशन नहीं होगा। तो ये तो उन्हें उन इलाकों को स्पेसिफाइड करना चाहिए जहाँ पे काश्तकारी नहीं होती, या कोई ऐसे इलाके हैं जो आइंदा 20-25 सालों तक भी उन पे काश्तकारी मुमकिन नहीं है। तो इस तरह की पॉलिसीज तो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा, ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा एक खदशा है कि फर्टाइल लैंड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। तो बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए ये, बल्कि पूरा हाफिजाबाद जो है, या पुराना हाफिजाबाद से निकल के ये मुरब्बों के ऊपर फैल चुकी हैं हाउसिंग सोसाइटीज। तो ये बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक ये एक बात है कि बिल्कुल इसके ऊपर हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि वो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए रेजिडेंशियल एरिया जो है उसके लिए कोई ऐसी जगह मुंतखब करे जहाँ पे काश्तकारी मुमकिन ना हो। ताहा, आप अगले। जी अस्सलाम साहब, मुझे पूछना था वो रीसेंट कुछ महीनों के रिलेशन में कि क्योंकि अब पैंडेमिक के साथ साथ लॉकडाउन जब हुआ था उस वक्त डिमांड विद जैसे कि रेस्टोरेंट्स और ये सब के क्लोजर पे आप लोगों के फार्मिंग और ये सॉरी एग्रीकल्चर की डिमांड से आप लोगों को इफ़ेक्ट क्या पड़ा था? स्पेसिफिकली कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की थी आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कि अब देखें जो पेंडेमिक है इसमें तो हिट तो सारे ही हुए हैं, लेकिन अब जैसे हमारा सीजन जा रहा है, अब जो 22-23 या 2400 का बैग मिलता था सीड का, अब वो 4000 में मिल रहा है। और वो भी आपको नहीं मिल रहा जहां से आप परचेज करेंगे, जो भी मतलब
सीट का जो काम करने वाले हैं वहाँ पे आपको आप उनको मजबूर भी करेंगे तो 2 से या 4 या 5 बैग आपको देंगे। एक तो ये चीज़ें मतलब जो एक 2200-2400 रुपए की एक जो चीज़ थी वो 4000 पे पहुँच गई। इसी तरह जो हमारी इंसेक्टिसाइड्स हैं, विडिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, ये भी महँगी होगी। तो ये जितनी भी मतलब इस्तेमाल होती हैं एग्रीकल्चर में जितनी भी चीज़ें, उन सारों की एक तो वो मार्केट से गायब हो गई। आपको पता है कि जब मतलब पीछे से कोई चीज़ नहीं आती, स्टॉक महदूद हो जाता है और फिर उसमें मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है और फिर जब सीज़न आता है उसको फिर महँगे दामों में बेचा जाता है। इसके ऊपर भी कोई हुकूमत की वाज़ह पॉलिसी नहीं है। जो सब्सिडाइज़ की बात करते हैं अब इन्होंने वीट सीड के ऊपर की, फर्टिलाइज़र के ऊपर की, फिर फार्मर्स को कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराएँ। तो जब रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ उसके ऊपर तो घंटा-घंटा आपकी कॉल ही नहीं मिलती। अगर मिल भी जाए तो उसके ऊपर जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं उसके बाद आप कन्फर्मेशन के लिए आपको 3-3 4-4 दिन वो लग जाते हैं। तो जो बिल्कुल फार्मर अनपढ़ है वो बेचारा उसके तो बस की बात ही नहीं है। तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो भी गई तो आप 5 से 10 बैग के ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और अगर मिली भी तो वो आपको 3 महीने 90 डेज़ तो वो देते हैं तो वो 180 डेज़ हो जाते हैं। पहले ये होता था कि आपको मौके पे सब्सिडी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस को मुश्किल बना दिया ना सब्सिडी वाला जो प्रोसेस है, जो पहले डायरेक्ट ये होता था कि हम लोग अगर खाद के ऊपर उन्होंने सब्सिडी दी है, तो अगर 1800 रुपए का बैग मिला, हुकूमत ने 400 रुपए सब्सिडी दी, तो हमें मार्केट से 1400 रुपए का मिलता था। अब ऐसा नहीं है। जी, अली आप हैं अगले। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा ये सवाल था कि आपने जैसे कुछ देर पहले मेंशन किया कि जब आप आहिस्ता-आहिस्ता फर्टिलाइजर्स का आपने इस्तेमाल कम किया और आप इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक या नेचुरल सिस्टम्स की तरफ गए, तो आपने 4-5 जी, साल में ही कुछ रिजल्ट्स देखे, बहुत अच्छे क्वालिटी में भी फ़र्क आया और ये सब चीज़ों में फ़र्क आया। तो अब जी मेरा सवाल ये कि स्पेशली इसे एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए कि एक हल इसका ये हो सकता है पाकिस्तान लेवल पे कि आम किसान को एजुकेट किया जाए कि अच्छा ये सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, इससे ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आपसे मैंने पूछना था कि आपने जब अपनी इन चीज़ों को डिस्कस किया इर्द-गिर्द के और किसानों से या उन्होंने जब देखे आपके रिजल्ट्स, तो क्या लोगों का किस किस्म का रिस्पॉन्स था इस पे दूसरे फार्मर्स का? क्या लोग इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे या नहीं थे? बिकॉज़ एजुकेशनल प्रोग्राम अगर आता है ऐसा, तो उसमें ये तमाम चीज़ें उसमें आएँगी कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी। आपका इस पे क्या एक्सपीरियंस रहा? जी, बिल्कुल, मैंने 5-6 साल गुज़ारे इसमें और इसमें ये जिस तरह के मैंने ये अपना फार्मिंग जो टेक्निक्स हैं जब चेंज की, रवायती से मैं गैर रवायती जो सिस्टम है उस पे आया। तो स्टार्ट में तो मुझे पहला साल जो था, उसमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इतने रिज़ल्ट तो अच्छे नहीं मिले। लेकिन दूसरे साल जब स्टार्ट हुआ दूसरा साल तो उसमें मुझे वाज़े तौर पे रिज़ल्ट्स जो है ना वो देखने में आए। तो मेरे जो इर्द-गिर्द के फार्मर्स हैं, अब तो ये 5-6 साल में मेरी मतलब शबाना रोज़ कोशिश थी कि मैं ऐसे हालात जो हैं वो उनको डेवलप कर लूँ, जिनसे ये सिस्टम जो है, ये आसान हो जाए। तो मैंने तो ये डेवलप कर ली है। अब दूसरा जो किसान है उसके लिए ये मसला है, जिस तरह की मेरी प्रैक्टिसेज़ हैं, यानी नो टिलेज प्लस रेसिड्यू मैनेजमेंट। तो इसका तो अब तो मतलब ये पोज़ीशन है कि तो मेरे इर्द-गिर्द के जो फार्मर्स हैं, अब वो इस इंतज़ार में हैं कि हमें कब ये हालात मुयस्सर हों तो हम इस फार्मिंग सिस्टम को एडॉप्ट करें। बेसिकली ये है मैकेनिकल बेस्ड सिस्टम जो मैंने एडॉप्ट किया। इसमें मखसूस किस्म के आलात इस्तेमाल होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत ये प्रोटोटाइप्स बनाए, उनको फाइन ट्यून किया, मुझे ये 5-6 साल लगे। तो मैंने ये आलात जो हैं जब डेवलप कर लिए, अब मैं तो एक लाइन पे लग गया। मैं तो मतलब इस पे जो वो एक मसाइल जितने भी मुझे मसाइल दरपेश थे मैंने उनको उनसे बढ़ के मतलब एक कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया। लेकिन आगे जो मैं आलात इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपने तहत तो नेशनल लेवल पे वो अवेलेबल तो नहीं कर सकता। इसके ऊपर हुकूमत की तवज्जो आनी चाहिए और वो नेशनल लेवल पे इन हालात को जो है वो दस्तयाब करने के लिए इसको नेशनल लेवल पे इनकी प्रोडक्शन का जो है वो एहतमाम करें। तो फिर जाके मतलब हम अपनी प्रैक्टिसेस चेंज कर सकते हैं। ज़िम्मेदार अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करना चाहता है,
लेकिन उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे मैंने जिक्र किया ज़रिए आलात की। वही पुराने, वही रवायती आलात उनके पास मौजूद हैं जिनके साथ वो अपनी रवायती काश्तकारी है उसको जारी रखे हुए हैं। अदीन, ठीक है, मैं अदीन अगर आप रेडी नहीं तो अज़ीम। नहीं, मैंने मैम बस ये पूछना था कि अभी आप जैसे बता रहे हैं कि मतलब आप जो ये आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते और आप ये और मतलब वैसे ही नेचुरल तरीक़ों से जो है आप फर्टिलाइज़ करते हैं अपने सॉरी अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं और मतलब ये सारी आप जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि मतलब आपकी जो क्रॉप्स जो हैं, जो उग रही हैं, वो बेहतर क्वालिटी की हों। तो मतलब जो दूसरे फार्मर्स हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं वो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए मतलब गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्ते फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स और ये तरीके और लेकिन एंड में जो वो उनकी जो यील्ड है, उसकी कॉस्ट कम है। तो मतलब जो नॉर्मल अवाम है वो तो मतलब कम कॉस्ट वाली चीज़ को प्रेफ़र करती है। तो इन मतलब ये ज़्यादा कॉस्टली मेथड्स यूज़ करने से आपकी सेल में या फिर कोई ऐसी चीज़ में फ़र्क पड़ा है? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखें इनपुट्स जब इंक्रीज़ होती है एक फार्मर जैसे मैंने 5 सालों में अपने सॉइल स्ट्रक्चर पे तवज्जो दी। तो इस साल मैंने पिछले साल भी एक ऑर्गेनिक जो व्हीट है वो ग्रो की, उसकी प्रूनिंग करके मैंने अर्ली अक्टूबर में मैंने लगाई जबकि इसको तसव्वुर नहीं किया जाता था कि ये ठीक मौसम है जिसमें व्हीट को सो किया जाए। लेकिन मैंने कर डाला उसको और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने उसकी 3 बार प्रूनिंग कर डाली, यानी उसको रगड़ के उसको काट दिया और वो दोबारा फिर उसकी अपना ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हुई। तो उससे मुझे बहुत हौसला मिला। ये पिछले साल की बात है। फिर इस साल मैं चूँकि फसलों की बाकियात छोड़ रहा था अपनी ज़मीन में, तो उनकी एक लेयर बन रही थी। यानी हर साल जो मतलब जैसे मैंने व्हीट का जो रेज़िड्यू है उसमें मैंने राइस लगाया। तो जो व्हीट का जो रेज़िड्यू है वो राइस की जो हार्वेस्टिंग है तब तक वो गल चुका था। वो कार्बन बन चुका था, उसकी डिकम्पोज़िशन मुकम्मल हो चुकी थी। अब राइस का जो रेज़िड्यू है, अब ये मैंने उधर ही मैनेज कर लिया अपने खेतों में यानी अपनी फ़ील्ड में। तो जो नीचे एक लेयर बन गई जो डिकम्पोज़िशन जिसकी हुई हुई थी, अब वो नीचे फर्टिलाइज़र का ही काम करती है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर में इज़ाफ़े का सबब बनती है। तो मैंने इस तरह फिर एक साइकिल बन जाता है आपका। एक तो आपकी ज़मीन के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज़ होती हैं, आप पुरानी बाक़ियात को जब मैनेज करते हो, वो एज़ अ मल्च काम करती है। वो ग्रीन हाउस गैसेज़ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अब इसका अखराज होता रहता है। अगर आप इसको सीक्वेस्ट्रेट करते हैं, इसको दबा के रखते हैं, तो ये आपकी फसलों के काम आती है। ये आपकी फसलों को चाहिए होती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे में चली जाती हैं, एक डिकम्पोज़िशन होके वो एक ह्यूमस आपका डेवलप होता जाता है। तो मुझे 5-6 सालों में मैंने तकरीबन अपने 100 एकड़ में ये चीज़ें डेवलप कर ली। तो उससे जो फर्टिलाइज़र है, वो मिनिमाइज़ होना शुरू हुई। पहले जो रवायती हमारी काश्तकारी उसमें तो ये ऊपर को जा रही है ना, जहाँ पे आप 1 बैग डालते हैं, अगले साल आप 1.5 बैग पे चले जाते हैं, फिर अगले साल आप 2 बैग पे चले जाते हैं। अगर आप 2 बैग नहीं डालते, तो आपकी ऑब्वियसली जो आपकी पैदावार है वो कम कम आना शुरू हो जाती है। तो उससे ये होता है कि फर्टिलाइज़र जो है वो आप ज़्यादा जब डालते हो, वो ऐसे ही है जैसे अपनी फसलों को स्टेरॉइड आप इस्तेमाल करवा रहे हो। उससे आपकी पैदावार में फ़र्ज़ी तौर पे इज़ाफ़ा तो होता है, लेकिन आपकी ज़मीन जो है, आपका जो सॉइल स्ट्रक्चर है, वो पुअर होना शुरू हो जाता है। या तो आप इस तरह की प्रैक्टिसेज़ करें, जैसे मैं बाक़ियात को मैनेज करता हूँ, आप मुनासिब फर्टिलाइज़र यूज़ करें, तो उनकी जो कंटामिनेशन है, वो आपस में क्रॉस हो जाता है उसका। तो जब आप बाक़ियात ऊपर से आप जब उसको आग लगाते हो, ज़मीन का एक टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जैसे माइक्रोब्स जो ज़मीन के अंदर काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, वो तकरीबन 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का जो दर्जा हरारत होता है, उसके ऊपर उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो बहाल रहती हैं। जब आप फसलों की बाक़ियात को आग लगाते हैं, तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि उस वक़्त आपकी ज़मीन का टेम्परेचर क्या हो सकता है। तो उन हालात में आपकी जो माइक्रोब्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो तो फिर फ़ाल ना रही।
और उन्होंने ही वो सारा जो डेड मटेरियल है उसको डिकम्पोज करना होता है, और तो कोई ऐसी चीज नहीं है जमीन के अंदर। ये कुदरती चीजें हैं जो डेड मटेरियल, आप इस तरफ अगर मैं वजाहत करूं तो बात लंबी हो जाएगी। अब ये जो डेड मटेरियल होता है, कुदरती तौर पे एक फंगाई डेवलप होती है डेड मटेरियल के ऊपर, जिसको सेप्रोफिटिक फंगाई कहते हैं। हमने वो फंगस डेवलप करनी होती है अपनी जमीन में, जो डेड मटेरियल हम पुरानी फसलों की बाकियात छोड़ते हैं ना, उसके ऊपर जब सेप्रोफिटिक फंगाई डेवलप होती है तो वो अपने अंदर एक फंगल हाइफे डेवलप करती है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो एक्शन है, यानी वो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, आप ये तो आप जानते ही है ना कि मतलब जो एंजाइम्स होते हैं उनका क्या काम होता है। तो वो मुख्तलिफ किस्म के जो एक्शन होते हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं, तो वो उन सारी चीजों को जब वो डिकम्पोज करते हैं तो वही चीजें फसलों की खुराक बनती है। तो ये सारी चीजें, अगर इस तरफ इतना तो पढ़ा लिखा फार्मर नहीं है इन सारी चीजों को वो समझ ले, ये बताने की जरूरत है। जबकि ऐसा कोई भी फोरम नहीं है जो फार्मर को एजुकेट करे या इस तरह बताए कि आपकी जमीन का मटेरियल क्या है, आपकी जमीन है किस चीज की, जमीन के अंदर जो कुदरती जरखेजी है उसको बहाल रखने के लिए कौन सी ऐसी मखलूक है जो अपनी मतलब एक्टिविटीज जो है वो बहाल रखती है। तो ये फार्मर को तो पता ही नहीं है, उसके कान के ऊपर से ही चीजें गुजर जाती हैं। तो जो फार्मर इन चीजों को समझता है वही कामयाब होता है, जिसको नहीं पता वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता, और अपने आए दिन इन फ्यूचर वो अपनी जो पैदावार उसको कम करता चला जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जैसे वीट सीजन है, इसके लिए एक जो आम रवायती तरीकेकार है, 1 एकड़ की प्रोडक्शन के लिए, यानी उसका सीड बेड बनाने के लिए, यानी उसकी काश्त मुकम्मल करने के लिए 5 से 7 हजार रुपए का डीजल खर्च करता है 1 एकड़ के ऊपर। ये सिर्फ वो एनर्जी रिसोर्सेज में बता रहा हूँ कि आपने जो मशीनरी इस्तेमाल करनी है, उसके पासेस लगाने हैं सिर्फ और सिर्फ वीट सोइंग के लिए, बाकी के अखराजात तो बात की बात है। अब मेरी प्रैक्टिसेस जो है उसमें सिर्फ 400 से 500 रुपए का खर्चा आता है। अब ये देखें 5 से 7 हजार किधर और 400 रुपया किधर, यानी एक सिफर ही उड़ गई। तो अब ये इस चीज की जरूरत है, फार्मर्स को एजुकेट करने की जरूरत है, उनको बताना पड़ेगा, वो आलात उनको देने पड़ेंगे जिन आलात को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं 400 रुपए में 1 एकड़ तैयार कर रहा हूँ, और एक आम फार्मर जो है वो 5 से 7 हजार रुपए में एक तो आग भी लगा रहा है, FIR भी भुगत रहा है, और 5 से 7 हजार रुपए भी खर्च कर रहा है। और मैंने ये साबित 5 सालों से ये साबित कर दिया, इसकी फार्म प्रैक्टिसेस जो है, फील्ड ऑपरेशन सोशल मीडिया पे मौजूद है। एक हुकूमती अनासर जितने भी इदारे हैं मेरे पास आते हैं, इधर आके देखते हैं, लेकिन माँ सिवाय इसके कि मुझे दाद दे के बस आगे कोई पॉलिसी नहीं है, आगे कोई उसका मतलब उसकी आउटब्रेक के लिए या आगे दूसरे हुकूमत को जो ये प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर ये देते होते तो आज कोई ना कोई तो इसमें चेंज आता। बिल्कुल भी नहीं। मैं एक आदमी जो हूँ वो अपने तौर पे, तो इसका बेनिफिट तो मुझे ही जा रहा है ना, लेकिन मैं अपने तौर पे नेशनल लेवल पे ऐसे हालात कैसे बना पाऊंगा। ये तो हुकूमती जो दिलचस्पी है इसमें अगर होगी, वो उस लेवल पे इसकी प्रोडक्शन शुरू करवाए और इसको सब्सिडाइज करे, फिर आम फार्मर जो है उस तक मतलब ये चीजें जाएं तो वो उसको फायदा होगा। अदरवाइज वो वही पुरानी रवायती जो तरीकेकार है उसमें तो दिन ब दिन उसकी जो इनपुट्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही है, और आउटपुट जो होती है वो नीचे को आ रही है। बाकी तो मसाइल अलग है मार्केटिंग वाले, ये तो हम कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस करेंगे यहाँ पे, डिस्कस करेंगे। तो ये वो प्राइमरी इश्यूज हैं। मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आप जब ये प्लान करेंगे कि आपने इनपुट्स कैसे डिक्रीज करने हैं, एक फार्मर के बस में ये है कि वो अपने तरीकेकार को तब्दील करे और इनपुट्स में कमी लाए, फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकता है। अगर वो रवायती तरीकेकार से काश्तकारी करेगा तो मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं बेसिक्स जानता हूँ, मैं रवायती तरीके काश्तकारी से ही इधर आया हूँ। लेकिन हुकूमती लेवल पे या इदारे इसमें दिलचस्पी लें, वो आके वर्कशॉप्स करें, वो डेमोन्स्ट्रेशन जाके लगाए फार्मर्स के पास, वो जाके उनके साथ जाके डायरेक्ट मतलब राब्ते में है, इस तरह मतलब चेंज आएगा। ऐसा तो मतलब अगर सेमिनार्स में बैठ के या इस तरह मीटिंग्स जितनी भी कर लें उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक स्टूडेंट्स भी बाहर नहीं आएंगे, वो फील्ड का विजिट नहीं करेंगे, वो करीब से फार्मर्स की प्रैक्टिसेस को नहीं देखेंगे, उन्हें भी नहीं पता चलेगा।
भट्टी साहब, मैं तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक और स्टूडेंट का सवाल लेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ डॉक्टर अबूबकर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि एक तो पूरा दिन आप फील्ड में थे और मैंने आपको फ़ोन करके भी बहुत तंग किया, और आप अब कोई घर ऐसी जाने बात के नहीं। बजाय आप यहाँ स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जो कुछ हमने पढ़ा है और जो कुछ आज आपने उनको बताया है, मुझे ये लगता है कि अब के बाद वो जो भी काम करेंगे या जो भी पढ़ेंगे, वो कम से कम ये ज़रूर सोचेंगे कि इसका एक फार्मर पे या फार्मर की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या जो भी इंटरवेंशंस पॉलिसी लेवल पे होती हैं उसका आपको कोई फ़ायदा होता है या नहीं। तो मैं टाइम ज़ाया जी नहीं करना चाहती। मैं हसन को आपसे सवाल पूछने देती हूँ, फिर उसके बाद डॉक्टर अबूबकर को हैंड ओवर करूँगी कि वो बच्चों से भी सेंटर के बारे में कुछ शेयर करें और आपका फॉर्मली थैंक्स करें आने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, आपने काफ़ी एक इन्फॉर्मेशन दी है हमें सारी इस चीज़ के बारे में, और आपने सर गवर्नमेंट को भी काफ़ी मेंशन किया कि उसमें हुकूमत ने किस तरह के उनके जो है वो अमल होना चाहिए। लेकिन सर मैंने एक सवाल मेरा बस थोड़ा-सा ये था कि रिसेंटली अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मेरे डैड हैं, ही इज़ सर्विंग एक स्केल पे, तो वो बताते हैं कि काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी फार्मर्स के साथ कर रही है। सब्सिडाइज़्ड प्रोग्राम्स हैं, वो पेस्टिसाइड्स के हैं, मशीनरी के हैं। तो आप एज अ फार्मर इसमें क्या इसको आप कैसे लेते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली मदद कर रही है लोगों की या नहीं कर रही है? गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो एक टॉप टायर लेवल पे सिर्फ वो एक स्कीम बना देती है, लेकिन उसका फायदा एक्चुअल में जो फायदा वो फार्मर्स को नहीं पहुंचा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? और अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मर कम्युनिटी की बेस पे बात करें तो क्या और लोगों को भी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मेरा सर ये इस तरह का सवाल था। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है जी, आपने वो रिलेशन भी बता दिया कि एग्रीकल्चर किसी डिपार्टमेंट से आपका या आपके डैड का मतलब आपको आपका वास्ता तो है। मैं जी आपको सर। एक एग्जांपल दे देता हूँ। पिछले साल हमारी हुकूमत ने पैडी प्लांटर को इंपोर्ट किया, अब कोरिया से इंपोर्ट किया, ठीक है? अब पैडी प्लांटर जो है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में 3 इन्होंने पैडी प्लांटर देने थे। अब पैडी प्लांटर हुकूमत का पैसा था, हुकूमत ने मंगवा लिए। अब फार्मर्स तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि जब पहला उसका ट्रायल हुआ तो उसी में ही उसका फेलियर आ गया पैडी प्लांटर का। ये पैडी प्लांटर मींस ये जो धान की जो फसल लगाने वाला प्लांटर है, ये तो आपको पता ही होगा। अब वो क्यों फेलियर आया? अब किस इदारे की वो जिम्मेदारी है, या कौन उसकी ट्रेनिंग बाहर को लेने गया हो, या बाहर जाके उसके ऊपर देखा हो, या उसके ऊपर मेहनत की हो, या उसको उसकी उसकी प्रैक्टिसेस जाके वहां पे देखी हो, या पाकिस्तान में आके या मंगवा लिया या इंपोर्ट कर लिया। अब पहला उनको इशू ये आया कि वो हाइड्रोपोनिक ट्रेस में उन्होंने वो सही तरह से उसकी नर्सरी भी नहीं ग्रो कर पाए। जब वो फील्ड में लेके गए, पडलिंग वाला जो पडल्ड जो खेत होता है उसमें जब उसको उन्होंने दाखिल किया तो वो नीचे धंस गया। फिर उन्होंने कहा जी ये मट्टी में फर्क है, इसको इस तरह किसी और इलाके में लेके जाएं जहाँ पे वो क्ले जिसमें मिक्स हो, वहां पे उन्होंने चलाया। तो जब वहां पे लेके गए तो वो एक प्लांट लगाने की बजाय कहीं 5 प्लांट लगा देता, कहीं मिसिंग कर जाता, कहीं 2 प्लांट लगा देता। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? अब पाकिस्तान में सारी चीजें जो मतलब प्रोजेक्ट्स चलते हैं, लेकिन फार्मर, मैं एक बीइंग अ फार्मर, मेरी आम फार्मर से यूं समझ लें कि मेरी थोड़ी सी अप्रोच ज्यादा होगी मतलब लिंकेजेस के हिसाब से। तो मेरे पास आज तक मैंने जितने आलात इस्तेमाल किए मेरे खुद के डेवलप्ड हैं। मैंने मार्केट से भी आलात लिए और उनको रिमॉडिफाई करके अपने अंदाज में इस्तेमाल किया। अगर जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अब शायद ये मुनासिब होगा या नहीं होगा, इस तरह मेरा पहला इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह मतलब ऑनलाइन कभी मतलब जो है गुफ्तगू करने का। तो ये तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी और डॉक्टर साहबा का भी, जिन्होंने मुझे लाइन पे लिया और मुझसे मतलब फार्मर्स के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने को बोला। अब मेरे पास तकरीबन, चले मैं इस तरह नाम ले लेता हूँ, मेरे पास जो तकरीबन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पीआरसी कर लें कह लें, इस तरह के जितने भी उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो विजिट्स करते रहते हैं मेरे पास आके। तो अगर मतलब ऐसे हालात या प्रोजेक्ट्स में जो माजी में या हाल में कोई ऐसे हालात होते तो मुझे तो वो जरूर इंट्रोड्यूस करवाते उससे कोई भी ऐसे, बल्कि मेरे से इंफॉर्मेशन लेके बैंड प्लेस ड्रिल की मैंने बात की जो कि 20 साल पुरानी है, उसके ऊपर हुकूमत ने सब्सिडाइज किया। फिर डस्का में एक डीएसआर का होता है डायरेक्ट सीडेड राइस, कि जो आपका बीज ड्रिल करेगी खुश्क जमीन में। अब
वो 35-40 हजार की मशीन थी, उसके ऊपर 80,000 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया। 70,000 फार्मर देता है, 80,000 गवर्नमेंट, 1.5 लाख रुपए का उसका फायदा किसको हुआ? किसको हुआ? वो फैब्रिकेटर को हुआ। जिम्मेदार को तो उसका कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि जिम्मेदार को उसका फायदा इसलिए नहीं हुआ, जिम्मेदार को पता ही नहीं था कि मैंने वीड्स मैनेजमेंट कैसे करनी है। पूरे पंजाब में जिन्होंने डीएसआर की, उनके नाक में दम हो गया वीड्स को मैनेज करने के लिए। अब फार्मर्स को पता ही नहीं। अब मैं भी डीएसआर करता रहा हूं, मैं कामयाब रहा, क्योंकि मुझे पता था, मैंने स्टडी किया था, मैंने प्रैक्टिसेस की हुई थी कि मैंने वीड्स को कैसे मैनेज करना है। तो इस तरह मतलब ये लैक ऑफ ट्रेनिंग कह लें, या और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि सिंपली जैसे बाजार में एक बच्चा गुजर रहा है, कोई खिलौना अच्छा देख के वो जिद कर लेगा, ये मैंने लेना है, ये लेना है, पेरेंट्स उसको लेके दे देते हैं। अब ना पेरेंट्स को पता है उसको कैसे इस्तेमाल करना, ना बच्चे को पता है उसको कैसे इस्तेमाल करना। जो गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सिर्फ ड्रिल, और ये जो मैं मल्चर 5 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज नहीं कर पाई और इसकी प्रोडक्शन नहीं कर पाई। फर्दे वाहिद के पास है ये मल्चर, जो मैं 5 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मेरे पास आते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले आते हैं, जितने हुकूमती इदारे हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। अभी भी मेरे पास 5-6 एकड़ ये इस्लामाबाद से टीम एक आ रही है, वो लगाएंगे। मेरी जो मेथडोलॉजी है या जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंडर वो अपने ट्रीटमेंट्स लगाएंगे यहाँ पे आके। तो वो मेरे पास आ रहे हैं, एक फार्मर के पास आ रहे हैं। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? माजरत से मैं इदारों के ऊपर कोई ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन आप बिल्कुल एक हकीकत जो है, या एक जो सच्ची बात है, मेरी भी ये कोशिश थी कि मैं वो हकीकत बयान करूं, वो सच्ची बात करूं कि जिसमें किसी किस्म की, जैसे ये टॉक शोज होते हैं उनमें शो भी जिस तरह कोई एजेंडा दिया जाता है कि आप इस तरह बोलना है, तो वो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग तो पहले ही मासूम सी कौम होते हैं फार्मर्स। हमारे ऊपर तो जनाब पेस्टिसाइड, विडीसाइड्स, फर्टिलाइजर वाले अपने अपने उनकी पॉलिसीज, गवर्नमेंट के साथ जो भी उनकी पॉलिसीज होती हैं, हमें तो जनाब, हमें तो वो ऐश की पुड़िया भी जो है वो भी आके सेल करेंगे तो हम तो ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ना ही इतनी इल्म है, ना ही इतनी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ना ही हमें कुछ पता होता है कि हमने किस तरह। अब एक आदमी, मेरी मिसाल ले लें, एक आदमी को पता हो, ये जरूरी तो नहीं है सारों को पता हो। अब मेरे वाला जो मैं प्रैक्टिसेस करता हूँ वो है मैकेनिकल बेस्ड। ज़रूरी आलात वो मखसूस किस्म के हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब मैं अकेला आदमी, वो सारे आलात जो हैं वो मुल्की सतह पर या मतलब नेशनल लेवल तक तो मैं वो प्रोवाइड तो नहीं कर सकता ना। लेकिन कोई मतलब इदारे जितने आते हैं इधर, लेकिन आगे तो कोई नहीं इसके ऊपर किसी ने काम किया कि हम इन प्रैक्टिसेस को, या ये जो ज़रूरी जो आलात हैं, हम इनको नेशनल लेवल से हम इनको इनिशियलाइज करें, लोगों तक पहुंचाएं। कोई भी ऐसा मेरे साथ तो किसी ने आज तक नहीं कि आते हैं बस मुझे दाद दी तो चले गए, बाकी तो इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं आई। अब भी वो सब्सिडाइज जो है वही बैंड प्लेस ड्रिल को कर रहे हैं, जो कि राइस वाले खेत में तो आपकी वो सोइंग करेगी ही नहीं। तो ये वो भी 20-25 साल पुरानी है। तब तो कोई, अगर ऐसे हालात होते, इदारे हमारे इंट्रोड्यूस करवाते, तो मेरे पास भी तो होता ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब, माजरत से। थैंक यू सो ठीक है मच। सर, मैं थैंक अभी यू सो डॉक्टर अबू बकर को हैंड ओवर करती हूँ और उसके बाद फिर क्लास जब फॉर्मली एंड होगी। बट बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमें। और सर, डॉक्टर जी। सो सबसे पहले तो सुल्तान भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आप पहले भी हमें वक्त भी देते रहे हैं अपने कीमती मशवरों से, अपनी कीमती मालूमात से, और हम तो आपको उस्ताद मानते हैं एग्रीकल्चर का, तो हम आपसे सीख भी ये रहे हैं। आपका बड़ापन तो है जी, बहुत आप हमारे लिए तो आप बड़े हैं। मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, नहीं, आप बड़े बिल्कुल हैं भी। हमारे। हम आपसे सीख रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये स्टूडेंट्स भी जो हैं उनके लिए बड़ा ये नादिर मौका था आपसे डायरेक्टली बात करने का। एंड आई थिंक मैं, चूंकि क्लास का टाइम तकरीबन खत्म हो गया, तो मैं बिल्कुल 30 सेकंड में सिर्फ इतनी बात जरूर करूंगा जी कि जी आई थिंक स्टूडेंट्स शुड आल्सो रिकॉग्नाइज के देखें, ये जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जी इसमें जी जिस तरह आपने इतनी जबरदस्त इनोवेशन की है और जिस तरह सक्सेस भी आपको मिली है, तो इसको फैलना चाहिए। और इसमें ये जो लोग अब एजुकेटेड हैं, जो कि मुख्तलिफ दूसरे सेक्टर्स की तरफ देखते हैं, वो इस एग्रीकल्चर में भी आए और इसको लेके जो है वो आगे बढ़ें। और जो आपने मसाइल का जिक्र किया है वो उनसे फेमिलियराइज हों, और जिस जिस भी कैपेसिटी में जाते हैं आगे, वो फार्मर्स की मदद करें इन जी प्रॉब्लम्स को जी सॉल्व करने में। आई थिंक ये जी बहुत ही वैल्यूएबल आपकी आज की टॉक थी। इंशाल्लाह वी विल रिमेन इन टच विद यू। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं मुख्तसर सा
मैसेज यही देना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे साथ इन टच रहें. देयर इज अ लॉट टू डिस्कस एक्चुअली इवन आफ्टर दिस. तो फौजिया और मैं आपके साथ मजीद इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ जरूर बात करना चाहेंगे. बहुत शुक्रिया लुधान साहब आपका. थैंक यू सो मच इंडीड जी. Thank you everyone. अल्लाह Thank you Sultan Bhatti साहब, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज जी. अल्लाह हाफिज.